آج کے اس جمعہ میں میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے تبلیغ، اصلاح معاشرہ۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کیوں کرنا چاہیے؟ اور جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر سبوں کا یہی کام تھا، تبلیغ کرنا۔ معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان سے لوگوں کو روکنا، جنت کی خوشخبری دینا، جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ ابھی نبیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، یعنی ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ورثۃ الانبیاء، عالموں کو، علماء دین کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبیوں کا وارث کہا جاتا ہے، نبیوں کا وارث۔ کیا نبی نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا نبی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کیا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے گڑ گڑائے یا نہیں؟ انشاءاللہ انہی کے متعلق باتیں ہوں گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ان کی شان کو بیان کیا ہے، جہاں ان کے اونچے اونچے درجے کو بیان کیا ہے، جہاں ان کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کیا ہے، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے مسلمانوں کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کسی کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہاں یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ کوئی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا کہتا ہے، اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے تو مجھ کو غنی بنا دے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ انتہائی بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود رب کائنات کی زبان سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھا۔ اللہ رب العالمین کی زبان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھا، اور بیماری نے اس طرح نڈھال کر رکھا تھا کہ بیگانے تو چھوڑتے ہی ہیں، پرائے تو چھوڑتے ہی ہیں، اپنے بھی چھوڑ بیٹھے تھے، بیویاں بھی چھوڑ چلی تھی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ اسے لوگ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں مسلمانوں، اور ایک مچھلی آتی ہے اور اسے نگل کر لے جاتی ہے اور اپنے پیٹ میں چھپا کر سمندروں کے تہیوں میں اتار جاتی ہے مسلمانوں، اور وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، سمندروں کے تہیوں کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، بادلوں کی تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔ کیا سبب ہے؟ کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا ہے؟ کبھی آج تک ہم نے اور آپ نے یہ غور کیا ہے، اس بات پر فکر کی ہے کہ کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان
मछली के पेट में कैसे जिंदा रह सकता है? कोई इंसान उसके जिस्म पर कीड़े हो जाए वो कैसे जिंदा रह सकता है? कभी आपने सोचा है? मुसलमानों, चंद मिनट के लिए, कुछ लम्हा के लिए अगर मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनोगे, गौर और फिक्र करके सुनोगे, ऐसा मसला समझ में आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضल व करम से तौहीद की अज़मत को, दीन की अज़मत को, इस्लाम की अज़मत को, कुरान और हदीस की अज़मत को अपने दिलों के अंदर उजागर कर लोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बड़े बड़े लोगों का मर्तबा, उनकी शान, उनके बुलंद मनाकिब को बयान करने के बाद उनकी बेकसियों और बेबसियों का तज़किरा इसलिए किया कि ओ मुसलमानों, जब इतने बड़े बड़े लोग, जब इतने शानों वाले लोग, जब इतने बुलंद मकाम वाले लोग ये बेकस हैं, बेबस हैं, तो बाकी कौन है? तुम्हारी हैसियत क्या है? उन नबियों के सामने तुम्हारी औकात क्या है? मुसलमानों, जब इतने बड़े बड़े लोग बेकस और बेबस हैं, बाकी कौन है जो इन मुसलमानों की मदद कर सके? बाकी कौन है जो तुम्हारी तकलीफ में काम आ सके? बाकी कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके? लेकिन आपने सोचा? नहीं सोचा। आपने और हमने बस ये समझ के रखा है ये जो जिंदगी है यही काफी है, हमें मरना नहीं है, मौत का हमें डर ही नहीं है। क्यों? मरने का अगर इंसान को डर ना हो तो वो नमाज रोजा नहीं कर सकता है, वो नाच गाना ही कर सकता है। जिसको कब्र की अज़ाब का डर ना हो वो सिर्फ गुनाह ही कर सकता है, वो दीन की खिदमत नहीं कर सकता, वो इंसान तबलीग नहीं कर सकता। और सरदारों, याद रखना, आज मुआशरे के अंदर तो बुराई हो रही है और खामोश हो। आलिमों, याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा। आज आंखों के सामने बुराई, रोकने वाला कोई नहीं। आप सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह, इस मछली के पेट के अंदर कोई भी नहीं जानता तेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पे क्या गुजर रही है। ना उनके घर वालों को कुछ मालूम है, ना रिश्तेदारों को कुछ मालूम है, ना पड़ोसियों को कुछ मालूम है, ना ही उनके घर वालों को मालूम है। यहाँ तक कि जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, उस माँ को भी मालूम नहीं कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ गया है। अगर कोई आदमी मर जाता है, कोई आदमी अपने घर में मर जाता है, लोग उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफनाते हैं, फिर अपने तौर तरीके के मुताबिक उसे कंधे पर लाद कर अपने तौर तरीके के मुताबिक उसे अलविदा करते हैं। उसे कब्रिस्तान पर दफना कर चले आते हैं, जलाकर चले आते हैं अपने तौर तरीका के मुताबिक। यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं,
अल्लाह मैं तो ऐसे मछली के पेट के अंदर गया हूँ कि कोई जानता भी नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया हूँ, किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ गया है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर गए क्यों? बात तो समझ में आई कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, लेकिन क्यों गए? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फसहम फकान मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम। करा लॉटरी टाइप डाला गया। लॉटरी ये खेलने वाला नहीं, 4-5 लोगों का नाम लिया जाता है, सबका नाम लिखा जाता है और जिसका नाम आता है वही गुनहगार होता है। इस तरह का लॉटरी। कश्ती में बैठे, कश्ती डूबने लगी, कश्ती वालों ने कहा कि कोई अपने मालिक का भागा हुआ शख्स इस कश्ती में आया है जिसकी वजह से कश्ती डूब रही है, करआ डालो, जिसका नाम करआ निकलेगा वही वो शख्स होगा जो अपने मालिक से भागा हुआ होगा। उसे उठाओ, कश्ती से उठाकर समंदर में फेंक दो ताकि उसकी जान जाए, बाकी लोगों की जान बच जाए। अर्श वाला कहता है करआ डाला गया, उस इंसान का नाम निकला जो कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान था। मुसलमानों, जो कायनात का सबसे अफजल इंसान था, जो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, उससे अफजल और इस दुनिया के अंदर कौन हो सकता है? फसहम फकान मिनल मुदहज़ीन। और ये अपने रब से भागा हुआ था और ये अपने मालिक से भागा हुआ था। अल्लाह ने तबलीग के लिए मबूस किया, बस्ती वालों ने मानने से इनकार कर दिया, घबरा गए। आज हमारे आलिम लोग भी घबरा गए। जुआ खेलने वाला जुआ ही खेल रहा है, शराब पीने वाला शराब ही पी रहा है, नाच गान करने वाला नाच गान ही कर रहा है, शादी करने वाला बारात लेके जा रहा है। आलिम चुप है और ये भी साथ में बारात जाना शुरू कर दिए। चुप हैं, बुराई तो रोकते नहीं, बढ़ावा देते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर कोई हदीस ऐसी आप निकाल कर दिखा दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों की शादी में गाना बजाए या हल्दी चंदन किए या बारात लेकर गए, रब्बे काबा की कसम मैं आपके चौखट पर आपकी गुलामी करूंगा। ये रस हिंदू का रस में, ये रस गैर मुस्लिम का रस में, ये शरीयत इजाजत नहीं देती कि आप बारात लेकर जाओ। ये शरीयत इजाजत नहीं देती कि आप घर में लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को गीत और गाने के साथ डांस कराओ। यह हिंदू का रस्म है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जिस कौम की मुसाफियत करेगा वो उसी के साथ हो जाएगा। अगर ये हिंदू का रस्म है और अगर कर रहे हो तो हिंदू हो जाओगे, और अगर हिंदू हो गए तो समझ लेना दुनिया भी बेकार और सीधा जहन्नम में जाओगे। ये रिवाज किसने लाया? ये सुन्नत आपके बाप दादा की है, नबी की सुन्नत नहीं है। नबी की सुन्नत क्या है सुनिए। नबी किस तरह तबलीग करते थे, लोगों को किस तरह बताते थे। ये नोटेंगी नहीं करते थे। आज के मुसलमानों के जैसे निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी चीज है। और उसको हमने क्या कर दिया? हिंदू का रस्म बना, उसको हमने क्या कर दिया? बेकार कर दिया। बारात जाते हो 60-60, 70-70 जाकर खाकर आते हो। कौन सी किताब में लिखा हुआ है
दिखाओ कौन ऐसी किताब में लिखा हुआ है कि बारात जाकर लड़की वालों के घर खाकर आओ। मैं बता दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है कि खिंजीर का गोश्त यानी सुअर का गोश्त और बहता हुआ खून और मुर्दार हराम है, हराम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। लेकिन ये